Yes, children. So now we are going to study about uniform circular motion, right? So as the name suggests, uniform, right? What is the meaning of uniform? Uniform means same, right? So what is uniform circular motion? Uniform circular motion is a type of circular motion in which a particle is moving in the same speed with a constant speed, right? But it is an example of accelerated motion. Why it is an example of accelerated motion? When the particle is moving with the same speed, say v, speed same है 5 बट क्या चेंज हो रहा है? पार्टिकल का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है. बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग वी से दैट the velocity is changing. Because the velocity is changing, we say that uniform circular motion is an example of accelerated motion. So कोई भी uniform circular motion हम क्या बोलते हैं? It is an accelerated motion. For example, motion of the tip of a second hand of a clock. Second hand स्पीड सेम है. अगर स्पीड आगे पीछे हुआ तो तुम्हारा वॉच का टाइम चेंज हो जाएगा. स्पीड क्या है? सेम है, बट इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. मोशन ऑफ पॉइंट on the rim of a wheel rotating uniformly. Any point which is rotating on the wheel uniformly is a uniform circular motion, right? It is an accelerated motion. So in uniform circular motion we have few important terms that will be repeated in all the chapters again and again. So we need to understand all those terms, right? So the first term comes out to be angular displacement or angle. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी कैसे डिस्प्लेस हो रही है? बॉडी तो वही है, क्या चीज चेंज हो रही है? बॉडी की एंगल चेंज हो रहा है. सो द चेंज इन द एंगल whenever the body is moving, the angle swept out by the radius vector. Radius vector जितना भी एंगल मूव करता है, the angle swept up by the radius vector is called as the angular displacement. We denoted by theta, delta theta, anything you can write. So theta is, because we know the formula in maths also, angle is equals to length of the arc upon radius. तो हमने कहा कि सर्कल का रेडियस कितना था? r. कितना एंगल इसने स्वीप किया? डेल्टा थीटा. ये लेंथ ऑफ द आर्क कितना आया? ये यहाँ पे a पे था और a से b तक लेंथ ऑफ द आर्क कितना आया? डेल्टा s, right? So what will be angle is equals to length of the arc upon radian upon radius. So delta theta will be delta s by r. Length. Angle is measured in radian. So the SI unit of angular displacement is radian, right? So when it is the angle is changing, angle is being changed. जब डिस्टेंस चेंज होता है तो हम कहते हैं कितना डिस्टेंस कितने टाइम में चेंज हुआ, दैट इज बाय लीनियर वेलोसिटी. बट यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? एंगल चेंज हो रहा है. व्हेन एंगल इज बीइंग चेंज्ड, देन द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी. क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी? वी डिनोट एंगुलर वेलोसिटी बाय ग्रीक लेटर omega. It looks like W. This is called omega, right? So what is omega? Omega is the ratio of angular displacement to the time. अभी अगर हम इसको डिफरेंशियल टर्म्स में कहें या हम ये कहें हमने टाइम बहुत छोटा कर दिया, इतने कम टाइम में कितना एंगल मेजर हो रहा है? वी वांट टू फाइंड दैट. इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो व्हाट वी विल डू? लिमिट डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड व्हेन वी नो व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग लिमिट एंड टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट इट इन डिफरेंशियल फॉर्म. सो ओमेगा कैन बी रिटन एज डेल्टा की जगह अगर लिमिट हमने बहुत छोटा कर दिया तो वी कैन राइट इट एज डी थीटा ओवर डी टी. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल. So in the differential form, what will be the SI unit? Angle upon time, that is radian per second will be the SI unit. Coming to the next, अभी जब हम बोल रहे हैं कि ये कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन है. एक्सेलरेटेड मोशन है तो लीनियर एक्सेलरेशन यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी से हम नहीं ले रहे, हम चेंज इन एंगल कैसे ले रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगुलर एक्सेलरेशन विल ऑल्सो बी देयर. What is the angular acceleration? It is denoted by alpha. It is also a vector. Omega is also a vector, right? So what is angular acceleration? Angular acceleration is the rate of change of angular velocity with respect to time. So what is alpha? Delta omega over delta t. Again अगर हम ये लिमिट delta t अप्रोचिंग टू जीरो कर दे, ये बहुत छोटे टाइम के लिए हम निकाल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं. सो हाउ विल फाइंड इट? विल फाइंड इट बाय d omega over dt. What will be the SI unit? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन में होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, एंड वी डिनोटेड बाय डी ओमेगा ओवर डी टी. डिनोट बाय अल्फा.
राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितना रिवॉल्व कर रही है बॉडी, कितने रोटेशंस या रिवॉल्यूशंस ले रही है, कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं एक सेकंड में, कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं एक सेकंड में, राइट। सो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। वी डिनोट फ्रीक्वेंसी बाय न्यू और एफ. So nu is the reciprocal of the time period. What is time period? Time period is the time taken to complete one revolution. एक पूरा रोटेशन के लिए, एक पूरे चक्कर के लिए जितना टाइम लगता है, that is called as the time period. And the reciprocal of time period is called frequency, right? So frequency का ऐसा यूनिट will be 1 upon time, मतलब second inverse. Second inverse को हम क्या बोलते हैं? Hertz, right? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अभी जब कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या एक्ट करती है? लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगी ना वो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है लेकिन एक रोटेशन में कुछ डिस्टेंस होगा 2 पाई आर, सेकेंड में होगा 2 पाई आर, थर्ड में होगा 2 पाई आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इट विल हैव लीनियर वेलोसिटी विच इज v, एंड इट विल हैव एंगुलर वेलोसिटी। एंगल के चेंज होने की वजह से जो हो रहा है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम इसको वेक्टर डिनोशन विल डिस्कस लेटर, सो इट विल हैव व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड द लीनियर वेलोसिटी, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. So in this diagram we have studied that what is angular displacement, length of the arc upon radius, dividing by both the sides, dividing by delta t on both the sides. ये क्या बन जाएगा? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, और ये आर को हमने अलग लिख लिया. टेकिंग लिमिट्स ऑफ बोथ द साइड्स, क्या सेम है? रेडियस सेम है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया. यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो, यहाँ पे भी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो. अभी ये क्या बन गया? ये बन गया डी थीटा ओवर डी टी. ये सारा क्या बन गया? ये बन गया डी एस बाय डी टी. आर अलग है बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टेंट. डी थीटा बाय डी टी, अभी हमने पढ़ा डी थीटा बाय डी टी क्या होता है? ओमेगा. ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर डी एस बाय डी टी. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी. सो क्रॉस मल्टीप्लाइंग वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ गया? v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा. सारे न्यूमेरिकल्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू आर. अगर हम यहाँ पे बात करें डायरेक्शन की, सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हम ऐसे इसको लिखते हैं v इज इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा. डायरेक्शन कैसे होगा वेलोसिटी का? डायरेक्शन विल बी गिवन बाय राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा अलोंग द टेंजेंट. ओमेगा का डायरेक्शन कैसे होगा? ओमेगा का डायरेक्शन होगा अलोंग द एक्सिस. बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, ये टेंजेंशियल टेंजेंशियल टेंजेंशियल. एक्सिस में ये जो डायरेक्शन है ये होगा हमारा ओमे. देखो रेडियस अंदर की तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, और ओमेगा टुवर्ड्स द रीडर बाय राइट हैंड थंब रूल. ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है v, रेडियस वेक्टर अंदर, तो ये ओमेगा का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द रीडर और अवे फ्रॉम द रीडर, डिपेंडिंग ऑन क्या डायरेक्शन आप v का और ओमेगा का r का ले रहे हो. सो ओमेगा विल बी अलोंग द एक्सियल वेक्टर, v अलोंग द टेंजेंट, एंड रेडियस वेक्टर ऑलवेज टुवर्ड्स द circle, like towards the center of the circle. So that is how we find the relation between linear velocity and angular velocity. Similarly, we have a relationship between linear acceleration and angular acceleration. So we'll discuss that relation also quickly. It's very simple. We can easily find it by differentiation. Relation between linear acceleration and angular acceleration, right? Now we know that velocity is equals to r omega. Vector नहीं ले रहे हम अभी, magnitude wise ही ले रहे हैं. v is equals to r omega. Differentiating both the sides, differentiating both the sides. So this will be dv by dt. क्या constant है दोनों में? r constant है, बाहर आ जाएगा d omega by dt. What is dv by dt? Yes, very good. Acceleration is equals to r d omega by dt. Just now we have studied rate of change of angular velocity with respect to time, r alpha. This is the relation between linear acceleration and angular acceleration. In terms of vectors, how we write? r cross alpha. फिर से ये कोई बॉडी मूव कर रही है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, नेट एक्सेलरेशन है, रेडियस वेक्टर अंदर की तरफ है,
अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द एक्सिस, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा ये, राइट. So A is equals to R cross alpha in terms of vector, otherwise acceleration is equals to R alpha in terms of magnitude, right. So I hope these relations are important, and yeah, I hope this you understood this, and these relations are important. You need to study them well for the exam.